شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے حساب دینا پڑے گا۔ جو بچے ہیں، بچوں سے بھی حساب لیا جائے گا، اس لیے کہا گیا 10 احکام میں کہ ماں باپ کی عزت کرو۔ اور اگر یہ عام بات ہوتی تو کبھی بھی خدا اس بات کو، اس حکم کو موسیٰ کے ذریعہ سے تختیوں پر لکھ کر نہ دیتا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ سلام جی، یہ عزت نہیں۔ عزت ہے اپنے فرائض پورے کرو۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ ہر طرح کی محنت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ ماں سردیوں میں اٹھتی ہے، دکھ میں رہتی ہے، سکھ میں رہتی ہے، جیسے بھی ہو وہ بچوں کو پکا کر دیتی ہے۔ باپ مزدوری کرتا ہے، لیبر کرتا ہے، آفس جاتا ہے، جس کی بڑی اکڑ ہے وہ دوسروں سے باتیں سنتا ہے، پریشر میں رہتا ہے۔ اس پریشر کا اثر کیا ہے؟ کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ پریشر نوکریوں سے ملتا ہے، اور اب یا پریشر کو میں چھیڑوں گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر کی کیا طاقت ہے کہ وہ کس طرف لے جاتی ہے۔ بچے پریشر ڈالتے ہیں ماں پہ، اور ماں پریشر ڈالتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ، اور ہسبینڈ پہ پریشر ڈالتا ہے اس کے جاب والے، جاب والوں پہ پریشر ڈالتا ہے ان کا باس، باس پہ پریشر ڈالتا ہے ان کا کمپنی کا انچارج، کمپنی کا انچارج جو ہے اس پر پریشر ڈالتا ہے جو آنر ہے، جو مالک ہے۔ اب وہ جب ریورس ہوتا ہے پریشر، تو کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ دراصل ان تمام بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ ہے اپنے فرائض پورے نہیں کرتے۔ بچے سکول جاتے ہیں، ماں باپ ان کو اٹھا رہا ہے، اور وہ بس میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں۔ اور اگر ماں باپ ان کو بھیج رہا ہے تو سارے رستے بڑ بڑ کرتے جاتے ہیں، ماں کو برا کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں ہمیں ابھی سونا تھا، آپ نے جلدی اٹھا دیا، اور ادھر جا کے ٹیچر پہ اس نے اتنا کام دے دیا۔ اب باپ کی فکر ہے، ان کی فیسیں دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بیوی کے نخرے لینے ہیں۔ بیوی کہتی آپ کو نخرے نہ دکھاؤں تو کس کو دکھاؤں؟ اب وہ ایک مرد ہے جو گھر کا چراغ ہے، اور اس چراغ پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ جلتے جلتے ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں وہی بچے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ وہ سعودیہ رہتا ہے، وہ کینیڈا امریکہ رہتا ہے، بغیر پیپروں کے رہتا ہے، وہ ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، فلور پہ سوتا ہے، سردیوں میں سوتا ہے فلور پہ، کئی جگہوں پہ ہیٹر نہیں ہے، کئی جگہوں پہ گرمیوں میں کوئی پنکھا نہیں ہے، لیکن وہ سیکریفائس کرتا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے نہیں کہ اس کا بھی ایک خدا ہے، اس کا بھی ایک باپ ہے جو اوپر اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کا حساب وہ لے گا ضرور۔ جب وہ گھر جاتا ہے پاکستان یا انڈیا یا نیپال یا بنگلہ دیش، تو پھر یا جس ملک میں اس کا گھر ہے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ تو ہم نے یہ کرنا تھا، ابھی وہ کرنا۔ وہ ابھی 10 دن گھر میں نہیں رہتا تو اس سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں
बीवी की आजादियां खराब हो जाती हैं, बच्चों की आजादियां खराब हो जाती हैं। जब जी चाहे हम सोते हैं, जब जी चाहे हम उठते हैं, बीवी जिधर चाहे चली गई, उधर चली गई, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा फलां है, और वो शौहर बेचारा अकेला तन्हा। आप एक बात याद रखें कि वो चिराग जिसकी वजह से घर में रोशनी है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो चिराग बुझ जाएगा तो उसका दूसरा चिराग जो ऊपर देख रहा है, जो चिरागों का चिराग है, वो हिसाब लेगा। किस तरह से? वही बीवी को, वही बच्चे अपनी मां को तन्हा कर देंगे, और फिर वो बच्चे उनको तन्हा कर देंगे। ये इस तरह का चेन चल जाएगा, इस तरह का व्हील चल जाएगा, इस तरह का साइकिल चल जाएगा, इस तरह का सर्कल बन जाएगा कि तबाही, बर्बादी, अबतरी, और फिर इल्जाम खुदा हमें दुख क्यों देता है कि तुमने खुदा को दुख देने के लिए अप्लाई कर दिया है, अपने अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे, अपने फराइज से भाग रहे हैं। मां, तूने हमारे लिए क्या किया है? कभी देखा है कि वो किस वक्त उठती है? वो पहले तुम्हें पालती है, फिर तुम्हारे बच्चों को पालती है, फिर तुम्हारे बच्चों के नखरे देखती है। वो बेचारी इस तरह घर में फिर रही होती है जैसे बड़ी कमजोर, बेयारो मददगार कोई मुलाजमा है, और वो बाप जो अपनी जवानी में नखरे में रहा, टौर में रहा, हीरो रहा, अब वो जीरो बना हुआ है, बीवी की नजरों में भी, बच्चों की नजरों में भी, रिश्तेदारों की नजरों में भी। और फिर कहते हैं, ओ यार, इन्होंने क्या किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए। आज अगर जो तुम मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हो, कारों पे फिर रहे हो, ये जो मोबाइल लेके फिर रहे हो, ये उन्हीं की मेहनत से है, उन्हीं का सांस है। जो तुम्हें चाचे, मामे, फुफियां अच्छे लगते हैं, ये सारे के सारे आपको वर्ग लगा रहे हैं। उनके बच्चे उनको वर्ग लगाएंगे, उनके बच्चे उनको तंग करेंगे, और आखिरकार क्या होगा कि सब कहेंगे, ये खुदा ने इस दुनिया में इतने दुख क्यों दिए हैं? ये दुख क्यों है इस दुनिया में? ये पीड़ा दुनिया में क्यों है? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये वो है जो आप बो रहे हैं। ये जमीन है, इस जमीन में आप जो गंदम बोते हो, जो मक्की बीजते हो, वो मक्की ही उगेगी, वो गंदम ही उगेगी, वो चावल ही उगेंगे। ये आपके सामने तस्वीर है। जो अगर आप गलत रवैया बो रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, वो आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ मूड में रहते हो तो आप भी तरसोगे कि कोई हमारे पास नहीं बैठता, कोई हमारा हाल नहीं पूछता, कोई हमें पूछता नहीं, कोई सलाम नहीं करता, कोई दुआ नहीं लेता। हम क्या करें जी? हम बहुत फिक्रमंद हैं, हम ये है, हम वो है। एक उस माई बाबे को सलाम कहना या हाल पूछना जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, आप हादसाती पैदा नहीं हुए। जो रूह आपके अंदर है वो आसमानों के आसमान में थे रूह, और उस रूह को जब इजाजत मिली, खुदा ने उस रूह को इस दुनिया में भेजा, तो इस माई बाबे ने ही एक बॉडी तैयार की थी जिसमें वो रूह आके बैठा है, जिसका आज नाम अकबर है या अफजल है या अजाज है या लतीफ है। ये उस रूह ने नाम लिया है, और उस रूह को नाम देने के लिए जो बॉडी तैयार की वो इस माई बाबे ने तैयार की, इन पेरेंट्स ने तैयार की जिनकी आप इंसल्ट कर रहे हो। ये जो पास्टर साहबान हैं आज कलीसिया की परवाह नहीं करते, सेलिब्रिटीज बने हैं। कलीसिया के मेंबरान, कलीसिया के जो करिंदे हैं,
कलीसिया के जो लेमैन हैं, जब वो आते हैं तो वो इस तरह से मिलते हैं जैसे कि बड़े मिनिस्टर को मिलने के लिए जा रहे हैं। खादम अपनी कलीसिया के अंदर रहता है, वो चरवाहा है, वो भेड़ों में रहता है। भेड़ों की जो बू है वो भी उसके कपड़ों में से आती है। चरवाहे के कपड़ों से पहचाना जाता है कि ये भेड़ बकरियों का चरवाहा है। इसीलिए बनी इसराइल को जश्न का इलाका दिया गया, क्योंकि तमाम बनी इसराइल भेड़ बकरियों का काम करते थे। उनसे बू आती थी, उनके अंदर लीडरशिप बचपन ही से चलती थी। भेड़ बकरियों का जो लीडर है वही बाद में, इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मुझे पता है किस तरह अपनी भेड़ों को घास फूस देना है। दाऊद क्या कहता है, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 23 में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे बैठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। अच्छा चरवाहा जो है, पेरेंट्स चरवाहे हैं, खुद जान जोखों में डालकर भेड़िए, जंगली कुत्ते, रीछ, शेर, फिर वबा, भेड़ों को वबा पड़ती है तो जो चरवाहा है कभी उसके कमर पर तेल लगाता है, काला तेल उसकी कमर पे लगाते हैं, उसके बाड़े में वो धुआं दिखा देते हैं ताकि धुआं उठता रहे, मक्खियां ना पड़े, मच्छर ना आए। वो चरवाहे की सरदर्द है। आपकी मां आपकी चरवाहा है, आपका बाप आपका चरवाहा है, और वो इसलिए भेड़ों को संभालता है। वही भेड़ें फिर अपने चरवाहे को ऊन देती हैं, दूध देती हैं और गोश्त देती हैं। चरवाहा छलांग लगा दे पानी में तो तमाम भेड़ें उसी वक्त उसके पीछे छलांग लगाती हैं। मैंने एक फिल्म देखी, एक चरवाहा भाग रहा था, वहां आग लग गई, वो भागा, उसकी जान बच गई, उसके पीछे पीछे भेड़ें भी छलांग लगाती जा रही हैं। उस वक्त तक आग मच चुकी थी, उसके शोले ऊपर उठ गए और वो भेड़ें जल रही हैं, लेकिन चरवाहे को देख रही हैं और भाग रही हैं। आप देखिए आपके घर में कौन लीडर है? मां। अगर बाप नहीं वहां पर तो मां लीडर है, अगर मां नहीं है तो बड़ा भाई लीडर है, अगर बड़ा भाई लीडर नहीं वहां पर नहीं तो छोटा भाई लीडर है, अगर वो नहीं है तो कोई बहन है। अब कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए, और जहां पर कोई लीडर नहीं, बनी इसराइल का एक टाइम ऐसा आ गया, मूसा मर गया, हारून भी मर गया, और अब लीडर नहीं है कोई। यीशुआ को इतनी जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या जाने, हम भी तो हैं, हमने भी तो अमालिकियों के साथ लड़ाई की थी, हमने भी तो हित्तियों के साथ लड़ाई की थी, हमने भी तो अमालिकियों के साथ लड़ाई की थी, हमने भी तो फलां किया था, हमने भी तो फलां। सब इस तरह हो गए और इतनी लड़ाई हुई उनके दरमियान कि वही बच्चे, वही लड़के जिनको खुदा ने ब्लेसिंग के लिए बुलाया था, वही आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई। तबाह बर्बाद कर दिया आपस में लड़ लड़ के, और आखिरकार यीशुआ को यह कहना पड़ा, रहा मैं और मेरा कबीला, मेरा घर, हम तो अब जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। हर किसी ने कोई बुत उठा लिया, किसी ने बुत बना लिया, किसी ने अपना तरीका कर लिया। जब लीडर नहीं माना जाता, सबसे पहले लीडर की तलाश करें। कई औरतें कह देती है, ओ तुम्हारे बाप को क्या पता है, मैं जानूं, मैंने पाला है, मुझे पता है, मेरी सुनो। वही बच्चे कहते हैं, अब हमें मां तूने हमारे बाप को मिलने नहीं दिया, तू बड़ी फफे कुट्टन है, तू बहुत शैतान है, तू बहुत बुरी है। इतनी इतनी गालियां मैंने सुनी हैं। औरतें कलीसिया में कई दफा रोते हुए बताती हैं कि जी हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, और मैं उनको कहता हूं, बहन जरा सोचो इस बात को, ये वही आग है जो तूने खुद सुलगाई थी, ये तूने खुद आग लगाई थी। तूने अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के खिलाफ भड़काया और उनको कहा तुम्हारा बाप तो ये है, तुम्हारा, वो रोटी कमाने के लिए गया है घर से, और मां बच्चों को क्या कह रही है, पता नहीं किसके पीछे फिर रहा है। उसको पूछो जिसने बिल जमा कराना है, उसको पूछो पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, रिश्तेदारों के
शुगल मेले, रिश्तेदारों के शादियां, रिश्तेदारों में कई मौत हो गई, किसी का कुछ नुकसान हो गया, उसको पूछो जो रात भर सोचता रहता है कहां से पैसे लूंगा, किस तरह मेहनत करूंगा, किस तरह डबल ड्यूटी करूंगा, किसको ठगूंगा, किसको चक्कर दूंगा, किसके पैसे मारूंगा, किसको बाहर ले जाने का झांसा दूंगा, किसको नौकरी दिलाने का झांसा दूंगा, किसके बच्चे को स्कूल दाखिल कराने का झांसा दूंगा, किसकी कमेटी खा लूंगा, किसका किराया खा लूंगा। उसको पूछो जिसके ऊपर हर तरह की बुराई के पहाड़ है ताकि वो अपने बच्चों को रोटी दे सके, और तू उसके बारे में क्या कह रही है? ये तो पता नहीं किसके बारे में सोचता है, हमें तो टाइम ही नहीं देता। तुम जो इतना टोकरा बच्चों का है ये कहां से खा रहे हो? भाई जी गलती हो गई, पादरी साहब अब गलती होगी, क्या करूं? मैंने कहा अब क्या करना है, अब रो, पछताओ और आगे के लिए भी तैयारी करो। आगे भी हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब लेने वाला खड़ा है। वो बंदा खप खपा के बाहर से घर आया, अब आगे बीवी ने वक्री अदालत शुरू कर दी। खामोश बैठा है तो किसकी सोचों में हो, हंस पड़ा है तो आज किसकी आप बड़ी खुशियां चढ़ी हुई हैं। बाल कटवा लिए तो किधर की तैयारी है, नहाया नहीं तो किस बात के लिए जुनून चढ़ गया, किसके मजनू बन गए। कुछ सोचो, अजाब तो आएगा, अभी दोज़ख तो आएगा, जहन्नम में तो जाना ही जाना है जो इस तरह करते हैं। लेकिन तुमने तो पहले ही अपने शौहर का जहन्नम इधर बना दिया, और अब आपके बच्चे तुम्हारा जहन्नम बना रहे हैं। बाद में उन बच्चों का जहन्नम उनकी बीवियां बनाएंगी, और अब उसकी बीवी का जहन्नम उसके बच्चे बनाएंगे। तुम्हारा चाचू नहीं अच्छा, तुम्हारे मामू नहीं अच्छा, तुम्हारी मासी नहीं अच्छी, तुम्हारा दादू नहीं अच्छा। खुदा ने फैमिली का सिस्टम कायम रखने के लिए अदन में जोड़ी बनाई। पैदाइश की किताब में एक मियां बीवी से दुनिया का सिस्टम चला है, और मकाशवा की किताब में आखिरी किताब है, मियां बीवी की बात नजर आ रही है। बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी को महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। ये पूरी बाइबल, ये पूरे मज़ाहिब, ये सारा सिस्टम मियां बीवी पर चलता है, और मियां बीवी के ही खिलाफ अबलीस काम करता है। जोड़ियां जो कहते हैं कि आसमान पर बनती हैं, जब नीचे कोई भी रहनुमा, कोई भी खुदा का खादम जब किसी को गर्दान देता है कि अब ये पाक निकाह में बंध चुके हैं, अब ये मियां बीवी हो चुके हैं, आसमान पर भी उनको मियां बीवी के नाम पर लिखा जाता है। इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा, तू बरकत लेना चाहती है, तू पानी लेना चाहती है कि ऐसा पानी जो तुझे दोबारा कुएं पर आना ना पड़े, सुख में रहना चाहती है तो अपने शौहर को ले आ। आज औरतें क्या कहती हैं, वो तो यीशु को भी कटहरे में ले आती हैं। तू बड़ा मेरे शौहर की फिक्र करता है, वो तो बड़ा ये है, वो तो बड़ा वो है। यीशु भी कहता है चल जा, फिर घड़ा उठा के फिरती रह, तुझे कहीं से ठंडा पानी नहीं मिलेगा, कहीं से सुकून नहीं मिलेगा, कहीं से इत्मीनान नहीं मिलेगा। तू तड़पती ही रहेगी, घड़ा लेके फिरती ही रहेगी, क्योंकि तू शौहर को अहमियत नहीं देती। वरना यीशु कह सकता था, अकेली औरत है, जो शागिर्दों ने भी कहा कि चल ठीक है, कोई परवाह नहीं बीबी, तू आ, मैं तुझे घड़ा पानी का दे देता हूं। नहीं, वो ना बीबी देखता है ना बाबा देखता है, वो अपने असूल देखता है। खुदा के सामने असूल हैं, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अगर बीवी उसके नाक में दम करेगी तो वो कैसे उससे मोहब्बत रखेगा? पहले ताबेदारी करे, फिर शौहर खुद ब खुद उससे मोहब्बत रखेगा। ये कभी भी नहीं कि वो आगे से बातें करती रहे और शौहर उसको प्यार करता रहे, कैसे हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने कलाम के आईने को, बाइबल खुदा का कलाम है और ये आईना है, इसमें अपने काम को, अपनी जिंदगी को, अपने खानदान को, अपनी रोजमर्रा की कलीसिया को, अपने एक एक अमल को इस शीशे में देखते रहें और परखते रहें, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा।
माफी नहीं होगी, हिसाब देना पड़ेगा, हर एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। तो उनको कह दे, खा वो सुने